اور یہ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ کہ جو بھی سنی عالم دین کی خدمت کرتا تھا اعلیٰ حضرت اس سے بہت محبت کرتے تھے. ابھی اس سے آگے کی بات سنیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت تاج الفہول بدایونی علیہ رحمت و رضوان ایک بار اپنے ساتھ لے گئے خیر آباد شریف. کہاں لے گئے جلدی ہو؟ خیر آباد شریف. خیر آباد شریف لے گئے اور ملنے کس سے گئے تھے؟ سید صاحب قبلہ ملنے کس سے گئے تھے؟ انہی عبدالحق خیر آبادی اپنے استاد کے بیٹے، اپنے رفیق سفر، رفیق درس اور اپنے جو ہے استاد بھائی سے ملنے کے لیے گئے تھے. اعلیٰ حضرت کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ چکا تھا. میرے امام فرماتے ہیں میں نے حضرت شاہ عبدالقادر بدایونی سے معذرت کر لی، میں ایسے آدمی سے نہیں مل سکتا جو آپ کے رد وہابیہ کے تعلق سے بدایونی خفتی کا جملہ بول رہا ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گیا تو لیکن خیر آباد میں ان سے ملنے نہیں گیا اور زندگی میں ان سے کبھی نہیں ملا، بلکہ آپ کہتے ہیں میں مولانا حسین بخش کے یہاں چلا جاتا ہوں. اعلیٰ حضرت حسین بخش کے یہاں چلے گئے، یہ بھی خیر آباد کے رہنے والے تھے. ہم نے کہا یہ ہے اعلیٰ حضرت تاج الفہول کے ساتھ بریلی کے امام احمد رضا خان کی محبت، اور یہ اعلیٰ حضرت تاج الفہول کی بریلی کے امام احمد رضا خان کے ساتھ محبت ہے. یہ ان کی آپسی محبت تھی. اس لیے آج کے دور میں اس محبت کو سامنے لانا چاہیے اور ممبروں پر بیٹھ کر اس کے بارے میں بتاؤ، تاکہ جو کھائیاں پیدا ہو گئی ہے، جو گھائیاں پیدا ہو گئی ہے، جو تکلیفیں سامنے آ گئی ہے، جو رکاوٹیں بن گئی ہے، وہ ساری چیزیں دور ہو جائے. اور یاد رکھو بریلی والے کسی سے بلا وجہ نہیں الجھتے ہیں، لیکن اگر شریعت کی بات آئے گی، ہمارا باپ اگر خدا نہ کرے شریعت کے خلاف جائے گا تو ہم باپ کو نہیں دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے وہ کس کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھتے کس کا پوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کس کا نواسا ہے. ہمیں نواسا بعد میں دیکھنا ہے، پہلے مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھنا ہے. دیکھو امام احمد رضا خان بیٹھے ان کے یہاں ہے، عرس کس کا ہے؟ سرکار شاہ فضل رسول بدایونی کا ہے. بیٹھے کس کے ساتھ ہے؟ جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ بند کر کے ان پہ فتووں پہ بھروسہ کرتا ہوں، لیکن جب بات مولانا سراج الدین کی آئی، ایک جملہ شریعت کے خلاف نکلا. آپ نے یہ نہیں دیکھا عرس کس کا ہو رہا ہے، خانقاہ کس کی ہے، اسٹیج کس کا ہے، ممبر کس کا ہے. نہیں، چونکہ شریعت کے خلاف بات تھی، اس لیے امام احمد رضا خان نے کھل کر کے مسئلہ بتا دیا اور یہ بریلی والوں کو ذہن دے دیا، اپنی اولاد کو بھی بتا دیا، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہیں ان کو بھی بتا دیا. اگر بات شریعت کے خلاف ہو تو نہ خالقہ دیکھنا ہے، نہ جلوہ گاہ دیکھنا ہے، نہ عیدگاہ دیکھنا ہے، نہ عبادت گاہ دیکھنا ہے. اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی مسئلہ ہے بریلی شریف کا، صرف یہی مسئلہ ہے. باقی بریلی کسی سے کوئی مخالفت نہیں، ہمیں کسی سے کوئی چڑھ نہیں ہے. اللہ آپ کو خوب ترقی دے. لیکن اگر شریعت کے خلاف جائے گا، ابھی دیکھیے آپ تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، عشق رسول، تو بریلی خاموش نہیں رہتی. الحمدللہ عرس رضوی سے اس کا جواب دیا جاتا ہے. تحفظ ناموس رسالت اور امام احمد رضا خان پہ خود تقریر میں نے کروائی تھی جمشید صاحب شبشاد صاحب کی. تو یہ ہمارے ممبروں کی خصوصیت ہے. جیسے حالات ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں ہم اسی کے مطابق اپنے اسٹیج سے تقریر کرواتے ہیں تاکہ قوم کو صحیح طور پر صحیح رہنمائی مل سکے. گفتگو تو ہو گئی میری، ہے نا؟ ابھی نہ ہوئی کیوں؟ اس سے آدم پہ تو ہر دن بولے تھا. تو آپ کو دیکھ کر ہی تو سب ٹیک لگائے بیٹھے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. میرا رخ آپ کی طرف ہے، رخ تو آپ کو میری طرف ہے، لیکن ابھی ایک جملہ میں آپ سے بولوں گا، اس کا انشاءاللہ استقبال کریں گے. نہیں اچھا مل رہا ہے، پریشان نہ ہو. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ. ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. جس جشن میں بیٹھے ہیں جشن غوث آدم ہے.
ये वली का नहीं, वली कर का जश्न है। ये आम वली नहीं, वलियों के सरदार का जश्न है। और अल्लाह ताला ने वलियों का मकाम कुरान पाक में जो बयान किया, पढ़िए आप, सूरह फातिहा होती है तो उसमें पढ़ते हैं आप। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई रंजो मलाल, ना कोई हुज़्नो मलाल है। और आप जानते हैं दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में सबसे खतरनाक खौफ क्या होगा? वो क़यामत का खौफ होगा। लेकिन कुरान कहता है ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइका। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो अल्लाह के वली है, जो नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, सुलहा है, अतकिया है, गौर फरमाइएगा। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को जेब में रखने, मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ और आप तक मेरी असली आवाज पहुंच रही है। आपके लिए कुरान सुनना वाजिब है और तर्क वाजिब कितना बड़ा गुनाह है आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं, इसलिए कि बगैर माइक के भी आप तक असली आवाज पहुंच जाएगी। कुरान कहता है ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइका। कुरान पाक कहता है ना कि जो अल्लाह के वली क़यामत के दिन इनको सबसे बड़ा खौफ जो है, जो क़यामत का खौफ होगा, इसका भी उनको रंजो मलाल नहीं होगा। मियां सब परेशान होंगे मगर अल्लाह वालों के इस्तिक़बाल में अल्लाह के फरिश्ते खड़े होंगे और कहा जाएगा यही तो वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। हमने कहा अल्लाह वालों की शान देखना है, आखिर क्या वजह है? अल्लाह वालों को खौफ तारी नहीं होता, अल्लाह वाले डरते नहीं, अगर ज़ाहिरी जिंदगी हो तब भी नहीं डरते, और क़यामत में भी अल्लाह का करम उन पर होगा। वजह क्या है? हमने कहा कुरान कहता है, कुरान पाक ने खुद कहा नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। कहा सुनो अल्लाह वालों सुनो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हारे मुआविन हैं, दुनियावी जिंदगी में भी मुआविन है और आखिरत में भी मुआविन है। अगर आप रास्ता तय कर रहे हैं, आपके साथ कोई पहलवान जा रहा हो और वो उसको लोग जानते हो, पूरा मोहल्ला उससे घबराता हो, पूरा शहर उससे खौफ खाता हो, तो आप कहेंगे मुझे डरने की जरूरत क्या है, मेरे साथ इतना जबरदस्त आदमी जा रहा है। बिला तशरीह व तमसील जब अल्लाह का करम इन वलियों के साथ होता है, इसीलिए तो ना दुनिया में इनको शेरों से खौफ करता है या जानवरों से डरते हैं। ये तो शेर का कान पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं, ये तो जानवरों को साथ लेकर के आ जाते हैं। इसलिए कि रब ने कहा नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ए अल्लाह वालों सुनो, हम तुम्हारे मददगार दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। और जब अल्लाह किसी का मददगार हो जाए उसको दुनिया का कोई गम कभी सता नहीं सकता है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने इतना बड़ा कमाल दिया है, अल्लाह वालों से रब खुद मोहब्बत फरमाता है और जो उनसे दुश्मनी करता है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सख्त वईद रखी है। पहले सुनिए अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों से किस कदर प्यार फरमाता है। एक हदीस में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया रुब्बा अशसा अकबरा ज़ी तमरैन लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबरना। फरमाया सुनो, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके कपड़े पुराने हैं, लिबास पुराना है, उनका जिस्म जो है देखने में बिल्कुल दीवाने और मजनू लगते हैं, लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, कहते अरे कोई पागल जा रहा है, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका ये मकाम और मर्तबा है। अगर रब की बारगाह में कसम खा लेते हैं, अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा दिया है। लेकिन जो वलियों का दुश्मन है वो भी सुने, आप तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो है उनको सुनाना। जो मज़ारात औलिया को मिट्टी का ढेर बोलते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने कहा मन आद अली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। ये कह रहे हैं हमारे वज़ीरगंज में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे बहुत है और यूट्यूब हमारा सुनने भी सुनता है। ये मौलाना बहुत अच्छे बोल रहे हैं, जर्जीज मौलाना देखो, तारिक मसूद देखो, अरे तारिक जमील बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अरे ये सब के सब कम वक्त हुजूर के गुस्ताखों को पेशवा मानने वाले, ये सब के सब ऐसे। सोशल मीडिया पे हर एक की नहीं सुनना चाहिए, उसी की सुनना चाहिए जिसके बारे में उलमा आपको बता दे कि इनकी सुनो, वरना घर बैठे अकीदे खराब हो गए। कितने मिर्जा इंजीनियर को सुन जी सच है। अब बताओ इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे आसपास में इतने बड़े बड़े उलमा हैं, एक इंजीनियर से दिन सीखेंगे। जाना
जाना तो नहीं अब देखो जाकिर नाइक और जाकिर नाइक को बहुत सारे मौलाना समझते हैं। अरे जिस कमबख्त को आज तक यही पता नहीं चला कि टाई पैंट शर्ट ये इस्लामी लिबास नहीं है। पैंट शर्ट लगा के ऊपर से टाई पैंट टाई वो लगा के और ऊपर से टोपी लगा के छोटी सी 2 पर्दे वाली हो रहा है, फिर लोग उसको मौलाना समझते हैं। बस किससे मुझे इंग्लिश आती है, हमने कहा कुरान इंग्लिश में उतरा ही नहीं। कुरान किस में उतरा? उर्दू में, अरबी में उतरा है। किसमें उतरा है? अरबी में। तो जो कुरान अरबी में उतरा है, तो जिसको अरबी अच्छी आती है उसके साथ जोड़ो। और आला हजरत को अरबी बहुत अच्छी आती है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। और याद रखो जो वलियों के दुश्मन है ना, कुरान ने कहा उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्ना हिज़्बश शैतानी हुमुल खासिरून। फरमाया सुनो ये शैतान का गिरोह है और शैतानी गिरोह नाकाम होने वाला है। और जो अल्लाह वाले हैं ये अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, उनको कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया ये अल्लाह का गिरोह है और अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है। हमने कहा वो शैतानी गिरोह है और ये ईमानी गिरोह है, ईमान वाले ही कामयाब होने वाले हैं। एक वली का मकाम और मर्तबा समझिएगा। अभी अब्दुल कादिर जिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उस मकाम और उस बारगाह तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वली का मकाम देखिएगा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने थोड़ा मोड़ा माल जमा किया और मैं हज करने के लिए जा रहा था। जल्दी बोलो कहाँ जा रहे थे? हज करने के लिए जा रहे थे। फरमाया मैं पैदल पैदल जा रहा था, एक बयाबान जंगल आता है, एक बयाबान आता है, एक जंगल आता है, एक अजीबो गरीब जंगल है। वहाँ मैंने देखा एक वली है जो बैठा इबादत में है, मसरूफ है और इसी तरीके से हालत जज्बो वज़्र में बैठा हुआ है, कैफियत उसकी बदली हुई है। बायज़ीद बुस्तामी को देखा और देखने के बाद कहने लगा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं काबे का तवाफ करने जा रहा हूँ। कहा इधर आ, मेरा 7 चक्कर लगा और मेरे 7 चक्कर लगा के मेरा तवाफ कर। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा मेरा तवाफ कर ले, तेरा ये तवाफ खाने काबा के तवाफ करने से बेहतर हो जाएगा। कहा क्यों? कहा सुन, अल्लाह ने खाने काबा को सिर्फ एक बार अपना घर कहा है और मेरा रब मुझे हर दिन अपना बंदा कहता है। कहा उसको एक बार घर कह दिया और मुझे अल्लाह अपना बंदा हर दिन कहता है और 7 बार कहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, इस वाक़ये से पता क्या चलता है? अल्लाह ताला ने एक वली को खाने काबा से भी मुअज़्ज़म किया है। आप कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आई, तो मैं कहूँगा रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है। सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतूफ़ु बिल काबा, मैंने सरकार को देखा हुजूर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करते करते काबे से बातें भी कर रहे हैं। आला हजरत ने बात तो नहीं की है, बात तो नहीं की है, मगर आला हजरत ने बात सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने काबे से बात तो नहीं की मगर काबे की तभी तो कहा ना गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। तुम भी बोल दो भैया, बोलने में पाबंदी नहीं, बोलिए गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से, मेरी आंखों से। आला हज़रत ने अपनी आंखें नहीं, काबे की आंखें बताई, जो आंखें हाल की आंखें हैं। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखा। काबे की भी आंखें हैं कि नहीं? आप कहेंगे नहीं यार हमें समझ में नहीं आता। हमने कहा काबे में हजरे अस्वद है, एक क़यामत के दिन हजरे अस्वद ईमान वालों के ईमान की गवाही देगा, काफिरों के कुफ्र की गवाही देगा। अब तो हो गई आंखें। आप भी तो अपनी 4 आंखें कर लीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने सरकार अलैहिस्सलाम को खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा। मेरे नबी खाने काबा से बातें कर रहे हैं। फरमाते हैं मा अतिया
अत्यबकी व अत्यब रिहकी मा आगमकी व आगम शारकी वल्लदी नफ्सु मुहम्मद बियदी लहरमतु दमिल मोमिनी आदम इंदल्लाहि हरमतन में। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए खाना ए काबा तू बहुत अच्छा है, ए काबा तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तेरी शान बहुत बुलंद वाला है। ए खाना ए काबा सुन, मगर आज मैं रब की कसम उठा करके तुझे फैसले की बात दे रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में एक मोमिन कामिल का वकार, उसकी इज्जत उससे कहीं ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली मोमिन कामिल है कि नहीं? जी बेशक बेशक कामिल मोमिन, पूरा मोमिन है कि नहीं वली? और सरकार क्या फरमा रहे? मोमिन का वकार, उसकी इज्जत उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा अब एक मसला समझो, एक मसला समझो। अगर कोई इमाम काबे की तरफ मुंह करके थूकता हो, उसके पीछे नमाज जायज है ना? एक दिन मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा, रिवायत में है इन्ना रजुलन अम्मा कौमन फबसका फिल क़िबला। सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स है जो इमामत कर रहा है लोगों को, और हुजूर ने देख लिया था कि इसने काबे शरीफ की तरफ थूका। वह रसूलुल्लाह यंजुर, सरकार देख रहे थे, उसी हाल में इसने थूक दिया। अब ये इमामत कर रहा था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, जब नमाज मुकम्मल हुई, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके पीछे नमाज ना पढ़ो, इसके पीछे नमाज ना पढ़ो, और ये तुम्हारी इमामत ना करे। ला युसल्ली का कलमा है, हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारी इमामत ना करे। उसके बाद मेरे नबी ने उसके इमाम से कहा फकद आज़ैतल्लाह व रसूला, तूने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है, तकलीफ दी है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, उसने रसूल पाक की तरफ माज़अल्लाह नहीं थूका था, उसने अल्लाह की बारगाह में जाके नहीं थूका था, बल्कि उसने काबे की तरफ थूक दिया था। मगर पता चला जो काबे की तरफ थूक देता है वो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देता है, और उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, उसको इमाम बनाना जायज नहीं है। हमने कहा सुन लियो, अभी तुमने सुन लिया ना, काबे से बड़ा मकाम वली का है। इसका मतलब ये है अगर कोई काबे की मुखालफत करे तो वो इमाम बनने के काबिल नहीं है, तो जो वली की मुखालफत करता हो तो कैसे इमाम बनाया? अरे वली की शान देखें, हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। चेयरमैन साहब वक्त ज्यादा हो गया? नहीं वक्त नहीं हुआ, असल में थोड़े चेहरे पढ़ना आ गए मुझे, 12 साल हो गए। 40 मिनट 50 मिनट करना पड़ा ऐसे करना पड़ रही यार, टाइम हो गया। हाँ यही तो कह रहा हूँ, मैं तो चेहरा देख के समझ गया ना कि क्या कह रहे ऐसे कर लिए, थोड़ा कर दिए। नहीं तो कोई बात नहीं, सर उठा सकते हैं। सरकार इस्लाम ने तो काबे के आसमानी की तरफ सर उठाया था, तो उसके जिक्र कुरान में कहा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, महबूब हम बार बार आसमान की तरफ तुम्हारा चेहरा उठाना देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उठाइए, समझ गए ना, कोई मसला नहीं, लेकिन बैठे रहिए, और ज्यादा वक्त हो जाए तो इशारा कर दीजिए। कौन सा अपने एक दूसरे से ताल्लुकात है, अपने पूरी रात पढ़िए, इशारा करेंगे बात खत्म हो जाएगी। वो आगे रहेंगे बिना तकरीर खत्म हो गई, ठीक है? अभी और सुनाओ, और सुना? 50 मिनट तो हुए। तकरीर करने गया था, मैंने कहा तकरीर खत्म कर दो, अभी और पढ़ो और पढ़ो। मैं चलो ठीक, और पढ़ दे रहे हैं। मुफ्ती गुलाम नबी साहब और पढ़े। ऐसा तो रहो हजरत, हमारे हम लोगों का सहारा आप ले रहे हो। हाँ ऐसा ही हो रहा है, आप भी टाइम की तरफ ध्यान दे रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा तो असल में